Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan all glories to all the assembled devotees here. So, can we begin the session, Gopi Manohar Prabhu? Can we start the session? Yeah, Mataji, thank you very much for singing Jai Radha Madam. Just give me a few seconds. I will just give a brief introduction about you. Okay, sure. तो हरे कृष्णा सभी भक्तों का आज के सुबह के सत्र में स्वागत है आपका। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस ऑनलाइन सेशन। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, हर ग्रेस नित्य लीला देवीदासी माता जी। माता जी जो हैं पाकिस्तान से हैं एंड माता जी का जैसे मैंने डाला था उनका इतना सारा क्रेडेंशियल्स है, इतना सारा डिग्रीज है। माता जी फिलोसफी किया है, माता जी डॉक्टर है और पता नहीं क्या क्या मैं अभी वो करने जाऊँ 15-20 मिनट उसमें निकल जाएगा। बट माता जी आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। मैंने जब उनका देखा था तो शी वाज मतलब मटेरियली भी उनके पास काफी सारी डिग्रीज है एंड स्पिरिचुअली भी माता जी बहुत सारी सेवा कर रही। माता जी कम्युनिकेशंस डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में एंड बहुत सारा माता जी से आज सुबह ही बात हुआ तो वो जस्ट रात को ही माता जी कहीं पे कॉन्फ्रेंस था, रात को ही वापस लौटी हैं। शी इज वेरी बिजी रनिंग हियर एंड देयर कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स फॉर इस्कॉन इन पाकिस्तान। तो वी आर रियली फॉर्चुनेट, हमारे साथ नित्य लीला माता जी आज हैं और आज उनसे उनको सुनने मिल रहा है। दिस इज रियली वेरी नाइस थिंग। तो हम लोग स्टार्ट करें। और एक चीज बोलना बोले, माता जी जो है अपने जो राम सखा प्रभु हैं उनकी सिस्टर हैं उनकी। तो वी ऑल नो राम सखा प्रभु। थैंक यू माता जी फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन एंड ओवर टू यू माता जी, प्लीज कंटिन्यू। Yeah, I feel very honored and highly privileged actually to get this opportunity in serving devotees of the Dubai region. It is really kind of really great benediction upon me by Lord. And I especially thank and extend my gratitude to Gopi Manohar Prabhu for really connecting me to this highly esteemed consortia, which I never thought that I would be interacting this way. A sort of dream come true position for me, and it is really a sort of collaboration which matters a lot among the devotees. And Krishna, Srila Prabhupada, they always instructed us to propagate whatever level we do have of association. चाहे 10 लोग हैं, 1000, but it all matters about the sadhu sangha. So bravo and congratulations to Dubai team for keep continuing such programs. I do notice all the communications coming up, and it's kind of diverse perspective, like they are also taking, I mean, you are also taking the local devotees, international devotees. So in conclusion, I would say it's kind of just incredible work in service to Srila Prabhupada, Sri Guru and Gauranga. So yeah, let's begin. So today's topic which has been given to me is Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 19, Text 33. So here I read the shloka. Yesham samsmrana pumsam sadhya sadhyanti vaigraha kim punardarshana sparsha pada soj asanadibhi. Simply translation. Simply by our remembering you, our houses become instantly sanctified. And what to speak of seeing you, touching you, washing your holy feet, and offering you a seat in our home. Um,
So all glories to Srila Prabhupada. Through his mercy and benediction, we are getting such nectarian association, nectarian literature, which has been compiled by Vyasa Dev. And obviously, we already know actually about the Raja Parikshad. Raja Parikshad Maharaj basically is offering these prayers, these heartfelt sentiments to Sukhdeva Goswami. तो जो इसका चैप्टर का नाम है, that is also the appearance of Sukhdeva Goswami. So I personally feel kind of very connected when जब मैंने देखा flyer और उसमें particularly this shlok has been written. So I felt really kind of overwhelmed and excited कि साधु की महिमा करने का या उसके बारे में कुछ बोलने का ये अवसर मिल रहा है. It is really a great opportunity for me. So yes, साधु सेवा, साधु दर्शन, साधु संग, साधु से जो लाभ होता है, ये टॉपिक, ये विषय बहुत एक्सटेंसिव है. इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके सामने कैसे जाना चाहिए, क्या उनको ऑफर करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें अपने आप को रोकना चाहिए, हमारी क्या कंडक्ट होना चाहिए, हमारे क्या उनसे भाषा होनी चाहिए, और इस लाभ को हम मेंटेन कैसे करें. क्या साधु संघ या वैष्णव संघ मिल जाना ही काफी होता है, या उस संघ को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में आगे जाकर. सो ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हमारे माइंड में आते हैं इस टॉपिक को लेकर. एंड कैंटो 1 इज स्पेशली आई मीन आंसरिंग और एड्रेसिंग दीज ऑल पोर्शंस, क्योंकि इसमें आमद होती है संत के आगमन की बात हो रही है कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो सेटिंग द सीन ऑन फायर. एक्चुअली ही इज एंटरिंग एंड महाराजा परीक्षित हिमसेल्फ इज महाभागवत एंड बहुत एलिवेटेड हाईली सोल है. इवन उनकी पैदाइश से पहले ही उनके गर्भ में श्री कृष्ण ने उनकी प्रोटेक्शन की थी. और हम सब जानते हैं महाभारत की हिस्ट्री, अश्वत्थामा ने किस तरह से अटैक करने की कोशिश की है. उत्तरा के गर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण ने प्रोटेक्शन की महाराजा परीक्षित की. तो यहाँ पर एक पॉइंट जो which stuck really my mind was like he himself is very highly elevated and exalted advanced soul, but still he is kind of giving so much reverence and has intense sentiments and respect and gratitude for Sukhdeva Goswami. The way he is offering his word is like full of devotion and there's a hallmark of actual yoga. So हमें ये पता चलता है कि जो भगवान है उनकी जो खुशी है, जो भगवान की मर्सी है, वो मिलती ही तब है जब हमें साधु संग प्राप्त होता है. तो योगा की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बताई गई हैं. भक्ति योगा है, कर्म योगा है, ज्ञान योगा है, तपस्या भी करते हैं, अष्टांग योगास भी हैं, बहुत सारे इस तरह के हैं. लेकिन जो भक्ति योगा है वो बहुत ज़्यादा उत्तम माना गया है. सो कहा भी जाता है सर्वेषु अपि योगी नाम सर्वेषु अपि योगी सर्वेषु. तो इसका मतलब ये कि जो योगी बनो, ए अर्जुन तुम योगी बनो. तो योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि हम जो आजकल समझते हैं योगा का मतलब कि हम कोई बहुत ज्यादा पीड़ाएं लेकर और बैठ के कोई आसन लगा के कर लेंगे. नो, योगा मीन्स इज कनेक्टिंग सोल टू सुपर सोल एंड द इजीएस्ट वे टोल्ड टू अस बाय श्रीला प्रभुपाद इज भक्ति. उसमें बहुत सारी जो है वो 64 टाइप की वो है, काफी सारी साधन बताए गए हैं या टाइप्स हैं या स्टेप्स हैं, श्रीला रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं. और उसमें भी पंच अंग भक्ति की बात बहुत प्राइमरी या प्रोमिनेंटली की है कि जी अच्छा साधु संग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. कीर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है, भागवत का या जो बुक्स हैं उनका श्रवण करना बहुत इम्पोर्टेंट है. इसी तरह धाम संग बहुत इम्पोर्टेंट है. और ऑफ कोर्स डीटी वर्शिप जो है, स्वरूप भगवान की जो विग्रह है उसकी उपासना सेवा करना. But it is again a kind of very attractive point and appealing point कि इतनी सारी व्याख्या भक्ति को समझने के लिए जब रूपा गोस्वामी ने की तो वहाँ पर भी उन्होंने सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी जो रैंकिंग दी, दैट इज साधु संगा. साधु संगा का जो महत्व है दैट कुड नॉट बी डिनाइड एट एनी पॉइंट. एंड इवन कहा जाता है कि
जब महाप्रभु जी जो हैं वो अपने डिसाइपल्स और अपने भक्तों के साथ जब रास्ते में जा रहे थे जगन्नाथपुरी से दूसरे शहर की तरफ, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक भक्त थे और वो बहुत ज़्यादा ही वाज ट्रांसेंडेंटली लाइक ब्लिस एक्सपीरियंसिंग एंड वाज क्राइंग। तो उस वक्त सब काफ़ी भक्त उनको नोट कर रहे थे और देख रहे थे कि इनकी जो अवस्था है, दिस इज रियली रेयर टू बी अचीव, इतना आसान नहीं है इस अवस्था को अचीव करना। तो महाप्रभु ने फौरन से उनसे पूछा, उसी भक्त से कि क्या आप कभी माधवेंद्रपुरी से मिले हैं, क्या आपको कभी उनका संग मिला है? क्योंकि उनके सिम्टम, उनके लक्षण ऐसे थे कि लगता था कि कोई बहुत ही हाईली एलिवेटेड सोल से उनका सानिध्य हुआ है, संग किया है उन्होंने। तो जब उन्होंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि यस, आई गॉट दिस फॉर्च्यून टू हैव एसोसिएशन विद माधवेंद्रपुरी, और मुझे उनको देखना मिला, उनको उनके दर्शन मिले, उनकी जो है वो चरणों की सेवा मिली मुझे। सो इस तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। इवन रघुनाथ दास जी जो है, स्वामी रघुनाथ जी जो है, उनकी हम स्टोरी पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि वो राधा कुंड वगैरह में 45 ईयर्स, मोर देन 45 ईयर्स जो है वो तक भी इवन काफी चांटिंग और क्राइंग में लगे रहे थे, मगन रहे थे। तो वजह क्या थी कि उनको भी हरिदास ठाकुर में जब वो चाइल्डहुड में थे तो बहुत छोटे थे, तो साधु वैष्णव जो परम एक्सल्टेड सोल है उनका संग प्राप्त हुआ था। तो इस वजह से उनको वो बहुत ही सुप्रीम जो ट्रांसेंडेंटल ब्लिस है वो महसूस कर पाए, वरना इतना आसान नहीं होता है। इसी तरह इवन नरोत्तम दास ठाकुर जी जिन्होंने चैतन्य चरित्र अमृत की जो है वो कंपाइलेशन की, उसको एक प्रॉपर फाइनल फेज में लेकर आए थे, तो इवन उनकी भी जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ही हैज गॉट सम profound interaction with गोस्वामी लोकानाथ जी। तो लोकानाथ गोस्वामी जी से उनका जब इंटरेक्शन होता है तो इवन ही वो उनसे इतना प्रभावित होते हैं, उनको कहते हैं कि मैं ये सारी कंपाइलेशन कर रहा हूँ तो मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए, इसमें आपका इनपुट चाहिए। तो लोकानाथ स्वामी महाराज का इतना ज़र्फ होता है, इतना इज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ वेरी हम्बल सोल। तो वो कहते हैं कि अच्छा जी, मैं यानी कि आपको सपोर्ट तो कर दूंगा, बट प्लीज डोंट मेंशन माय नेम एनीवेयर। ऑल्दो वी कैन सी दैट चैतन्य महाप्रभु की जो हार्ट है, जो उनका हृदय है, वो चैतन्य चरित्र अमृत बुक है ऑब्वियसली, उसमें अगर किसी का नाम आए तो इट्स अ काइंड ऑफ हाईली फॉर्च्यून, और हर कोई कोशिश करेगा कि ऐसे किसी बड़े उसमें योगदान होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, पर उन्होंने फिर भी अपना नाम नहीं दिया। तो ऐसे गुरु, ऐसे वैष्णवा का जब संग मिला उनको, जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, तो उन्होंने इवन उनके जो आसन थे जहाँ वो रहते थे वहां पर क्लीनिंग, उनके सब वॉशिंग सब कुछ शुरू कर दी थी कि मुझे किसी तरह इस वैष्णवा का कोई मर्सी मिल जाए, कोई मुझे इसका जो है वो आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इवन ही वाज आल्सो एस्पायरिंग कि मुझे इनसे दीक्षा मिल जाए या एक कंटिन्यूअस इनका वो मिल जाए, सानिध्य मिल जाए। बट ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। जो गोस्वामी थे उन्होंने नहीं उनको स्वीकार किया पहले, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मतलब इस स्टेज ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं आपको दीक्षा दूं या कुछ इस तरह से आपको संग प्राप्त हो। मेरा अपना एक वो है स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेट ऑफ एक्टिविटीज है। लेकिन इवन ही डिडंट गिव अप, एंड इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने कोशिशें करते रहे, वो उनकी जो है वो आसन पे जाते रहे, उनको भरपूर तरीके से हर मुमकिन सेवा करते रहे, चाहे दिन हो रात हो, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको इस महिमा का पता था। एक्चुअली कहा जाता है कि हमारी जो 7 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, ये जो 7 बिलियन है उसमें से कोई रेयर ही लोग होते हैं, पता नहीं 0.005% ही होंगे, आई डोंट नो द प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स, बट हाउ आई ऑब्जर्व इज कि इतनी कम परसेंटेज होगी जो लोग संपर्क में आते हैं, साधु संग जिनको मिल पाता है। ऑल्दो इस्कॉन इज वर्किंग ऑन प्रोफाउंड वे या ड्रास्टिक वे के मजीद इसको एक्सपेंड करें, मिशन को ज्यादा से ज्यादा मर्सी मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद एफर्ट्स। रेवोल्यूशनरी उनका एक धरती पर रोल और पार्ट उन्होंने प्ले किया है, तो इस वजह से हम सबको उसकी मर्सी मिल रही है। और इवन जो
हम थोड़ी सी साइंटिफिक बात करें तो एंड्स वगैरह या एनिमल्स वगैरह हैं तो उनकी भी स्पीशीज बहुत ज़्यादा है दुनिया भर में। वेट ऑफ एंड्स इवन जो हम कहते हैं कि इतनी छोटी सी हैं या वेरी मिनिमम साइज, उनका भी वेट ह्यूमन के वेट से बहुत ज़्यादा है दुनिया में। यानी ह्यूमन की जो यूनि है वो बहुत 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 ज़्यादा ही दुर्लभ है। और इसका मिलना ऑब्वियसली हम सब जानते ही हैं कि डायरेक्टली नहीं होता है कभी भी। पशु यूनि होती है या उसके बाद पत्ते पेड़, ये वाली सारी यूनियों के बाद फिर कोई मानव जन्म मिलता है। उस मानव जन्म में भी कुछ नहीं पता कि हमें साधु संग मिलेगा नहीं मिलेगा, वैष्णव का हमें आचरण करने का मौका, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। So we know so many stories in Shastras. Even Srila Prabhupada was one day traveling, so air hostess was seeing कि Srila Prabhupada is eating poha and not taking his lunch box which is available in airport airport setting. तो उस वक्त airplane setting, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप क्या ले रहे हैं and why you are not taking what I am offering is. तो उस वक्त Srila Prabhupada ने कहा था ये this is a poha and this is sort of prasadam and when you take it will give you mercy, auspiciousness और आपको लाभ मिलेगा। तो वो एयर होस्टेस ने जैसे ही उसको खाया, उसको ग्रहण किया प्रसाद को, तो उनको बहुत अच्छा लगा एंड ही स्टार्टेड ईटिंग ऑल द बॉक्स पूरा, और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। दैट वाज सो मच टेस्टी। तो उनके डिसाइपल वाज कि oh he's a old man and he's depriving himself and he must be very hungry and he started kind of scolding that girl कि जी आपको कुछ एहसास नहीं है, तो जो है वो काइंड ऑफ बहुत हाईली एलिवेटेड सोल है एंड संत है, सेंट है। तो उस वक्त शिला प्रभुपाद ने उनको फिर आंसर किया था अपने डिसाइपल को जो उनके साथ प्लेन में बैठे थे कि जी व्हाट इम्पोर्टेंट इज सेविंग द सोल, सेविंग द सोल इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। I can sacrifice so many lunch boxes and doesn't matter at all, but saving the soul is very important. And even we also hear one story of Maharaja Giriraj Swami. So we all aware that he is industrialist and इनके father judge थे and पूरा एक बहुत influential family था। लेकिन इवन उनकी जो कन्विक्शन थी उनकी फैमिली की, दैट वाज नॉट पॉजिटिव कि जी वो ज्वाइन कर रहे हैं कृष्णा मूवमेंट, और वो उनको लेकर चले गए थे एक दफा साइकेट्रिस्ट के पास। उनकी मॉम वाज लाइक गेटिंग हिम टू कि जी इनका माइंड कैसे चेंज हो गया है, क्या है, तो चलें जी इसका इवैल्यूएशन कराते हैं। तो इवैल्यूएशन के लिए जैसे गए तो लाइक साइकेट्रिस्ट वाज आस्किंग कि जी आपको क्या सिम्टम है, क्या फील होता है आजकल, हाउ यू आर फीलिंग। तो उस पे जो है वो गिरिराज स्वामी महाराज वाज रिसाइटिंग द श्लोक ऑफ भगवद गीता। एंड फिर उन्होंने कोई और सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी पहले कैसी थी अब कैसी है, तो फिर उन्होंने रिसाइट किया श्लोका। देन अगेन एक और सवाल उन्होंने साइकेट्रिस्ट ने इवैल्यूएशन में पूछा, तो उन्होंने फिर एक श्लोका और हरे कृष्णा महामंत्र। तो साइकेट्रिस्ट वाज ओ माय गॉड, आई थिंक यू आर इनटू दिस हरे कृष्णा श्लोका रेसिटेशन महामंत्र सो मच। मुझे लगता है कि आई वुड आल्सो स्टार्टेड रिसाइटिंग इट एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। एंड इवन साइकेट्रिस्ट इन द कंक्लूजन सेड टू गिरिराज महाराज के आई थिंक यू आर गॉन, यू आर कंप्लीटली गॉन। उनकी मदर को भी उन्होंने ये कहा कि ही इज कंप्लीटली गॉन। So completely gone, yes, completely gone to Golaka Vrindavan. That is the highest abode, and that should be our goal of actually our life to achieve Lord's Sangha, His service, जहाँ पे हम उनको संग कर सकें। सो जो चैतन्य चरित्र अमृत है उसमें दो बातें बताई गई हैं कि जो साधु संगा है उससे हमें भक्ति मिलती है और लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ सॉरी। तो ये सब हमें डेफिनेटली मिलता है। और इस तरह की बहुत सारी इवन स्टोरीज हैं। श्री कृष्णा जी जो है वो रुक्मणी जी के साथ द्वारिका में होते हैं, तो वो एक रुक्मणी जी देख रही होती हैं कि कोई वो है कीड़ी है और वो ट्राइंग टू लाइक सक ईट दैट शुगर का टुकड़ा होता है, उसको खाने की कोशिश कर रही होती है। तो उस पर श्री कृष्ण देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि अच्छा जी प्रभु आप स्माइल कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, क्या है इसका रहस्य क्या है। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो दिस स्टोरी, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बेसिकली यू नो हु ही इज, can we kind of expect who he is। so उस वक्त रुक्मणी जी बहुत एक्साइटेड होती हैं कि जाने कौन है ये कीड़ी और
शुगर। और तो उस वक्त भी श्री कृष्ण कहते हैं ये कीड़ी एक्चुअली इंद्रदेव है, ही इज इंद्रदेव। तो even Devi Devta, they have no opportunity directly, to serve Lord, to have Vaishnavas, to have Manav Sharir. So they are after some status, some मकाम चाहिए उनको, कोई positions है, then we all are aware कि वो वापसी आ जाते हैं दुनिया में, और उनकी जो greed है, लालसा है, वो खत्म नहीं हो रही होती है. So this is how a reality we know in our shastras is. And महत्व के ऊपर हम बहुत सारी स्टोरी ऑलरेडी जानते हैं, जैसे राजा भरत की स्टोरी है, तो लोग कहते हैं अच्छा जी राजा भरत जो है वो राज ऋषि थे, सब कुछ छोड़ के भक्ति की तरफ चले गए थे, उन्होंने एकांत ग्रहण किया था, एकांत में तपस्या मेडिटेट कर रहे थे और हिरण आ जाती है. But the important point is he didn't take any shelter of sadhu sangha. I heard it about, I am really not sure, but some commentary I came across this fact कि उनको कोई ऐसा प्रोफाउंड या बहुत जिसे कहते हैं सॉलिड कॉन्क्रीट कोई उनको साधु संघा या कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं मिली कि उनको प्रॉपरली एक मर्सी मिलती, गाइडेंस मिलती. तो इस वजह से क्या हुआ कि वो अपनी धुन में साधना तपस्या जो भी कर रहे थे, और फिर उनका अटैचमेंट जो है वो आ गया था, और इसकी वजह से उनको जन्म भी लेने पड़ गए थे. एंड इवन वी हियर द स्टोरी ऑफ अजामिल. तो अजामिल की तो सबको पता है स्टोरी कि जी किस तरह से साधु जी ने उनके बेटे का नाम नारायण रखा था. साधु की कृपा मिली थी उनको, उनका वैष्णव का संग मिला, और उसकी वजह से उनका जो अंतःकरण है वो ऑब्वियसली अंतःकरण उनके हृदय में कुछ ना कुछ शुद्धता ऐसी आई कि उनको भगवान का ही नाम उनके बेटे का मिल गया, और उसी को जापते जापते जाप करते करते उनका अंत में जो कॉल आई, फाइनल कॉल जिसे हम कहते हैं, तो उसमें उनको काफी फिर लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया. सो देयर आर सॉर्ट ऑफ हमारा जो धर्म है, हमारे जो वैदिक लिटरेचर्स हैं, उसमें आई सी इट द की पॉइंट इज सर्विंग द लोटस फीट ऑफ डस्ट, गेटिंग द लोटस फीट डस्ट, देन वी आवर लाइफ इज रियली काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट. अदरवाइज यस, माया जो है वो विक्टिमाइज करती है हमें, और क्योंकि हम जब तक मटीरियल, ये शिला प्रभुपाद की कोट है कि as long as we are in material life, Maya will keep on victimizing us, so we need to have guard on that. गार्ड कहाँ से मिलेगा हमें? क्या हमारी इतनी शक्ति है, क्या हमारी इतनी तपस्या है, क्या इतना हमारा साधन है, क्या भक्ति है हमारी? कुछ भी नहीं है, नथिंग, वी डू हैव नथिंग एक्चुअली, इनसिग्निफिकेंट. बट ये जो साधु होते हैं, इनके जैसे कहते हैं कि संत के आने से जीवन में बसंत आ जाती है. सो इट इज रियली काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बाय आवर ऑल, ऑल, हर किसी की. हम जब भी कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्टोरी सुनते हैं तो वहां पर ये बात जरूर करते हैं कि हमें वो प्रभु जी मिले थे, या हमें जो है माता जी ने कुछ बताया, या हमें जो है वो संग मिला था, या हम किसी प्रोग्राम को हमने ज्वाइन कर लिया था. तो ये सारी हम एक्सपीरियंसेस सुन रहे होते हैं भक्तों से, और वो बेसिकली क्या है कि टर्निंग पॉइंट होता है. साधु संग मिलने से ही कुछ ना कुछ इंसान की जो सुकृति होती है वो एक्टिवेट होती है, और मजीद उसको फल मिलना शुरू हो जाता है जो भी व्यक्ति है. और इवन मैं ये भी देख रही थी कि ऐसा नहीं है कि जो साधु संग का मतलब सामने ही कोई साधु हमारे घर पे आएंगे और उनके चरण कमल हम स्पर्श करेंगे, उनको सेवा ऑफर करेंगे, तो वही साधु संग है. यहाँ पर एक इस श्लोक में ये बात इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि रिमेम्बरिंग यू. तो रिमेम्बरिंग का मतलब होता है कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी, वेयर एवर आई एम, एंड विच एवर टाइम स्पेस ट्रांसिडेंस जोन, मैं अगर भगवान के भक्त को, वैष्णवा को, अगर साधु को मैं याद करती हूँ, तो याद करने से जो मेरे सिन है, जो मेरी दृष्टि है, वो प्योर होगी, सिन नष्ट हो जाएंगे. उनको याद करने से ही प्योरिटी आना शुरू हो जाएगी. इवन शिला प्रभुपाद की मुझे कोट बड़ी पसंद है. उनके डिसाइपल्स अक्सर उनसे पूछते थे कि प्रभुपाद आप मतलब नहीं समटाइम्स अवेलेबल होते हैं, आपसे बात नहीं होती है, या आपका डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट हो पाता है, तो क्या हम आपकी तस्वीर देख के आपको याद करेंगे तो वो भी फल मिलेगा हमें? तो शिला प्रभुपाद, यस, इट इज इक्विवेलेंट एक्चुअली. इफ यू, इट इज नॉट अ तस्वीर एक्चुअली, इट इज नॉट अ पिक्चर, शिला प्रभुपाद हिमसेल्फ इज देयर. तो ये हम सबके एक्सपीरियंसेस है कि रिमेम्बरिंग, स्मरण करना,
और खैर जब सामने अगर उनका संग मिल जाए साधु का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Nowadays the trend is very different. We all are aware how the advanced modernization, urbanization, industrialization is progressing. So उसके तहत हमारी जो सोच है, कॉन्शियसनेस है, वो लिटरली इस वैल्यू को हम नहीं ग्रैस्प कर पा रहे होते हैं. हमारा मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी वाला जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत एडवांस होता जा रहा है असल में. तो इवन साधु आते भी हैं या उनका साधु का संग भी मिल रहा होता है तो मुझे लगता है कि हम उसको क्या कहते हैं, उसका फल प्राप्त नहीं कर पा रहे होते हैं. It is really a tact, it is really a art, it is really a devotion actually, not art tact, उससे भी ज्यादा devotion है कि हम उनके संग का, चले संग दे भी दिया भगवान ने हमें, लेकिन हमने उसको अपने जीवन के लिए कैसे कन्वर्ट किया किसी लॉन्ग टर्म और प्योर आउटकम्स के अंदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एक कोई मैं स्टोरी सुन रही थी कि आई थिंक इंडिया के किसी मुंबई था या आई डोंट नो, किसी मंदिर में कोई सेशन चल रहा था और सेशन खत्म हुआ तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उन्होंने फिर एक दिन के बाद जो है वो एक किसी डिवोटी को बुला के पूछा कि अच्छा आप कल मूवी में चले गए थे, तो क्लास के बाद आप कहाँ गए थे? तो ही वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ मूवी देखने चला गया था. तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि हाउ कम, इट इज हाउ पॉसिबल, आपने क्लास सुनने के फौरन बाद चले गए आप मूवी देखने, ही कैसे पॉसिबल है? तो वो जो भक्त थे उन्होंने कहा आपने ही तो कहा था कि साधु संग में ही करना है, साधु संग ही रहना है, जो साधु करेंगे वही हमें करना है. तो मैं अकेला नहीं गया था, ये सारे साधु जो यहाँ बैठे हैं उन सबको लेकर गया था, वो मुझे लेकर चले गए थे. तो साधु संग का मतलब ये नहीं है कि व्हाट एक्टिविटी वी आर प्रोसीडिंग इज कुड बी एनीथिंग, यू नो. साधु संग तो मूवी देखने के लिए भी वो सब साधु जो थे वो भी चले गए थे. सो इट इज अगेन चॉइसेस वी मेक एंड हाउ इंटेलिजेंट वी आर. इवन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कोई बहुत अच्छी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है, सो 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अफेक्शन विद साधु, सीनियर्स, वैष्णवास, डिवोटीज, एंड नेक्स्ट थिंग इज योर इंटेलिजेंस. इवन शिला प्रभुपाद जब जा रहे थे तो भी उन्होंने यही कहा था कि हाउ दिस ISKCON वुड कीप कंटिन्यू बाय 2 थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेशन एंड यूनिटी कोऑपरेशन हमारी तभी डेवलप हो सकती है जब हम साधु संघ, वैष्णवास को रियली रिस्पेक्ट करेंगे. रिस्पेक्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in its original meaning. It is not just कि जी साधु संघ में हमने दर्शन कर लिया तो हमें कोई मटेरियल गेन मिल जाएगा या कोई बेनिफिट मिल जाएगा, वो सब तो मिल ही जाता है. बट व्हाट आर थर्स्ट एंड क्रेविंग शुड बी कि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुने, हम उनकी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, उनको समझें और देखें कि हम अपनी लाइफ में उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हम सब घरों में ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादा यूजुअल जो लोगों का प्रोटोकॉल होता है वो सोचते हैं कि अच्छा घर में सुख शांति हो जाएगी, आनंद आ जाएगा, घर में आजकल बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो चलो साधु संग करते हैं या कुछ साधु को जमाते हैं, इस तरह की हम सोच रखते हैं ज्यादातर. हमें इससे आगे इसकी सोच को समझना होगा. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि साधु संग, जैसे इसमें श्लोक में भी बताया कि साधु संग खुद एक चलता फिरता तीर्थ है, वो तो है ही तीर्थ, और बल्कि वो है जो कि जाके तीर्थों को भी जो है डिसइंफेक्ट करते हैं, लाइक उसको भी प्योर करते हैं, पवित्र करते हैं. लोग आते हैं वहां तीर्थों के अंदर, वो वहां पर अपने पाप कर्म छोड़ के जाते हैं तो वो मैला हो जाता है. बट व्हेनेवर साधु गोज देयर तो वो उसको डिसइंफेक्शन वाला प्योर सॉलिड डिसइंफेक्शन हो रही होती है. तो साधु संघ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैष्णवास का रिस्पेक्ट, उसकी क्या गाइडलाइंस है, हाउ टू बी अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर, हाउ वी अप्रोच वैष्णवा, हाउ वी अप्रोच साधु, हाउ वी अप्रोच डिवोटी, ये सारे कनेक्टेड टॉपिक्स हैं. तो अभी जो परीक्षित महाराज है वो भी किस तरह से स्तुति कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी की, हाउ ही इज अप्रोचिंग द वर्ड ही इज सेलेक्टिंग, द भाव ही हैज इज काइंड ऑफ रियली बियॉन्ड कंपेयर एंड बियॉन्ड वर्ड्स एक्चुअली. तो हमारे लिए डेफिनेटली ये लर्निंग है. एंड देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ अदर स्टोरीज. एक अद्वैत आचार्य जी का मैंने किस्सा सुना है कि वो जिस रियासत में होते थे तो वहां पर
कहा जाता है कि बादशाह ने एक दफा ये ऐलान किया था कि मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है। उन्होंने पूछा था वहां पर जो एस्ट्रोलॉजर थे कि जी अच्छा आप बताएं कौन है सबसे रिचेस्ट और ये वो। सो उस वक्त एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि द ओल्ड मैन हु इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड वेयरिंग द चादर एंड यू नो वो है। तो वो हैरान हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है, इतने गरीब की चादर है और बिल्कुल चप्पल पहन के गुजर रहे हैं, हाउ ही कुड बी। तो फिर पता चला कि बेसिकली ही इज अ हाईली एलिवेटेड सोल। जो वैष्णवास हैं दे हैव स्पिरिचुअल पावर्स, दे हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और उसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से ही वो सैंक्टिफाइड करते हैं, प्योर करते हैं। जहाँ कहीं वो जाते हैं वही मथुरा है, वही काशी है, वही वृंदावन है, वही मायापुर धाम है। तो ये सब बातें लिटरली हायर लेवल पे यानी ना हमें समझने की जरूरत होती है। एंड इवन आई हर्ड दैट शिला प्रभुपाद जो है वो टेम्पल में थे, तो उनसे किसी शख्स ने इसी तरह से पूछा था कि ओ you seem to be a very successful businessman, what's a kind of secret of it? तो Srila Prabhupada said कि nothing, we worship Lakshmi Narayan, I mean ISKCON is a kind of Narayan and लक्ष्मी इज जो हमें फंडिंग मिलती है या जिससे हमने ये सारा डेवलप किया है। सो लक्ष्मी नारायण नॉट डायरेक्टली वर्शिप बट श्री कृष्णा वी वर्शिप, बट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सो जब हम भगवान के लिए सेवा करते हैं और जब एक बड़े प्लान पे बड़े बिग थिंकिंग पर काम करते हैं भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए, तो लक्ष्मी जी खुद ही प्रसन्न हो जाती है। नारायण जी हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और इस वजह से इट फ्लोरिशेस। सो भक्त का जो मेन बिजनेस होता है दैट इज भक्ति। And I see that Vaishnavas are always need to be a successful businessman. अब बिजनेस हमें जब भक्ति समझ में आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि यस हमें टोटल कृष्ण को सेंटर बनाते हुए फोकस करना है अपनी उसमें। तो उन्होंने जो आए थे उनके टेम्पल में शिला प्रभुपाद से, तो कहने लगे नहीं फिर भी मुझे जो है ना बताए मैं कैसे बनूं, आप तो चलें ठीक है आप साधु हैं संत हैं और आपने तो इतना ऊंचा मकाम हासिल किया, $7 लेकर आप आए और इतना वैभवशाली और इतना ज्यादा ऑप्युलेंस आपने क्रिएट किया है, पर हाउ कम आई कुड गेट सर्टेन थिंग्स लाइक दैट। तो शिला प्रभुपाद ने कहा ओके यू कैन फ्रीली जॉइन मी, यू नो देन यू विल मोर अंडरस्टैंड कि कैसे होता है ये सारा। सो साधु संगा, इवन हम शिला प्रभुपाद की बात करें तो शिला प्रभुपाद की जो प्रेजेंस है that is most revolutionary sadhu sangha presence I ever heard on earth, we ever heard actually। हम समझ सकते हैं कि क्या विश्व की हालत थी, क्या सिचुएशन थी, but the disciples he created, the devotees he created, they were like fully determined, austerity हर लेवल में they were up to the mark। हगरीब वगैरह उनके कुछ disciples थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह उनके राइट अप करते थे, ट्रांसलेशन करते थे, दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे, just because they were honoring the presence of some exalted Vaishnava। उनको पता था कि उनके जीवन में कोई साधारण कोई व्यक्ति या पर्सनालिटी नहीं आए हैं, उनके जीवन में कोई बहुत ही एक्सल्टेड, कोई बहुत ही हाई लेवल पर सोना जो है वो उनको भगवान की कृपा से मिले हैं। So they were like all the disciples across the globe जो शिला प्रभुपाद के हैं, they were reciprocating that way with full samarpan, with full surrender and even we take daily inspiration। मैं आज भी लिटरली ये सोच रही होती हूँ कि किस तरह उन सब ने शिला प्रभुपाद के लिए बिल्कुल एकाग्र चित्त से होकर ना कुछ देखा, अपनी जिंदगी देखी, बट दे जस्ट सरेंडर्ड लाइक हाई इंस्पिरेशन वी कैन टेक इट। बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि हम अपने मटीरियल प्रोस्पेरिटी के लिए साधु संघों को घर में साधु संघ को प्रमोट करते हैं, या मोस्ट ऑफ दी लोग जो बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या वो सोचते हैं कि घर में साधु को बुलाएंगे, उनको प्रसाद ऑफर करेंगे तो हमारी प्रगति होगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ाई करेंगे और ये सारी चीज़ें आगे करियर होगा। ज़्यादातर सोच, इवन one of my you know recently even last month even one of my class fellow she is a doctor and she is also practicing, तो she said कि काफी दिन से मुझे ऐसे फील हो रहा है कि घर में शांति नहीं है and sort of thing। तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा जी हरे कृष्णा क्लास करा ले। It is also very good actually, this is also very good कि आप भगवान का नाम कीर्तन और ये सारा कराएं, but actual हमें मोटिव जरूर समझना चाहिए कि साधु संघ is more than that only material benefit।
बेनिफिट्स, उसका जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है साधु संघ का, वो हद से ज्यादा है। इवन आई ऑलवेज यूज टू थिंक दैट अगर इस पूरे संसार में, बिकॉज आई एम मोर फोकस इनटू वर्ण आश्रम धर्म एंड राम राज्य मॉडल, इट ऑलवेज इंस्पायर मी। तो मुझे लगता है कि कैसे हो सकता है ये इम्प्लीमेंट, राम राज्य है या वर्ण आश्रम धर्म मॉडल है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें हम अपने लेवल पर। तो एक ही चीज समझ में आती है कि जी साधु संघ, साधु संघ, साधु संघ, जैसे कहते हैं कि 2 घड़ी 1 घड़ी की, वो जो घड़ी है दैट इज वेरी 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 ऑस्पिशियस, उसको जितना हम प्रमोट कर सकते हैं। इवन शिला प्रभुपाद ने भी यूनिटी, कॉपरेशन, साधु संघ, डिवोटी एसोसिएशन को ज्यादा प्रमोट किया कि इससे ही ये सारी संस्था चल सकती है। तो साधु संघ जब हर व्यक्ति को अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली शांति आएगी, लोग अच्छे सस्टेनेबल कम्युनिटीज डेवलप करेंगे, अपनी लाइफ में भी प्रोग्रेस करेंगे। और साधु संघ के बगैर आई टोटली बिलीव इन, टोटली बहुत से लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी हम अपनी जो किताबें हैं या धर्म शास्त्र हैं या वैदिक शास्त्र हैं वो पढ़ लेंगे, उससे समझ लेंगे और इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। साधु संघ उसकी आशीर्वाद के बगैर, उसकी नजर करम के बगैर हम लिटरली कुड नॉट प्रोग्रेस एट एनी लेवल। बहुत से लोग हैं, मैं देखती हूँ कि they are the top Vaishnavas, not only top Vaishnavas, they are the top scientists, they are top researchers, they are top businessmen, they are top kind of industrialists, they are top advisor of the world. पीछे अगर उसका कहीं ना कहीं हम बैकग्राउंड देखते हैं तो कोई ना कोई उनके पास साधु का, जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्ट रखा हुआ है अपने आप को किसी साधु संघ से, किसी वैष्णवा से, किसी डिवोटी से। तो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट वो लोग जो कि वैष्णवा भी हैं और हायर लेवल पर जो है वो वर्ल्ड रेवोल्यूशनाइजेशन की तरफ काम कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोगों की जिंदगी हम देखते हैं तो ऑब्वियसली विदाउट मर्सी ऑफ, विदाउट जैसे कहते हैं कि आशीर्वाद, कोई भी आगे जिंदगी में, ना इस जिंदगी में ना बाकी जिंदगी में, जो नित्य जो हमारी इटर्नल सर्विस पोजीशन है कृष्ण के अबॉट में, वो कोई भी नहीं अचीव कर सकता है। आई रेड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एज वेल, तुलसी देवी की स्टोरी मैंने पढ़ी कि कोई यमदूत जो है बुलाते हैं कि किसी ऐसी मनुष्य को, तो उस मनुष्य को उनका फैसला करना होता है कि जी अच्छा इसको कहाँ लेकर जाना है, इसका क्या इसको आउटकम देना है, इसकी जो कर्म है। पर वो जो होता है शख्स जो होता है, व्यक्ति होता है, वो तुलसी देवी को साथ में पकड़ के रख लेता है, यू नो, कि जी तुलसी देवी जो है वो, तुलसी देवी डोंट लीव मी, तुलसी देवी डोंट लीव मी। सो ही लाइक स्टार्टेड ऑफरिंग प्रेयर्स एंड, तो यमदूत वाज लाइक काइंड ऑफ बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि अब मैं ऐसा क्या करूं, ये तो तुलसी देवी को याद कर रहे हैं, तुलसी देवी को बिल्कुल जो है वो छोड़ नहीं रहे तुलसी देवी का संग, और बिल्कुल तो उस वक्त बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि अब इनका क्या करना चाहिए। तो यमदूत जी जो है वो ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, ब्रह्मा जी को बुला के वो यही कहते हैं कि जी दिस पर्सन इज लाइक is along with तुलसी देवी, is not able to be controlled, और इसका क्या करें अब इसका। तो उस वक्त अगेन ब्रह्मा जी भी, जो इतने सारे उनके हेड्स हैं और इतनी सारी आईज हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं इवन कि इसका क्या करें, यू नो, ही इज लाइक विद द टॉप मोस्ट वैष्णवी, यू नो, अब इसका क्या कर सकते हैं। तो देन दे थॉट कि अच्छा जी ट्रबल शूटर लॉर्ड शिवा को बुलाते हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ तो जरूर पता चल जाएगा। एंड इवन लॉर्ड शिवा कम्स एंड ही व्हेन सी वृंदा देवी, सो ही स्टार्टेड डांसिंग, यू नो, उनको देखते ही फौरन से तो वो कहते हैं ओह माय गॉड, अभी तक तो एक केस था, तो 2 केस हो गए, अब किसको कंट्रोल करें, कैसे करें। तो such situation creates, and then finally they went to Lord Vishnu, और लॉर्ड विष्णु से जब वो बात करते हैं तो लॉर्ड विष्णु फिर ऑब्वियसली वो बताते हैं कि जब तक, वहां पर यही इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं कि जब तक वैष्णवास के साथ कोई भी मनुष्य अटैच है, उसके साथ मर्सी है, ब्लेसिंग है, संग है, लाभ है, दर्शन है, स्पर्श है, उसका कोई भी किसी तरह का भी सानिध्य है, संपर्क है,
तब तक उस वैष्णवा को कोई आफत नहीं आ सकती, उसका मंगल ही मंगल होगा, उसका कल्याण ही कल्याण होगा, उसके जीवन को कोई नहीं हार्म कर सकता। तो भगवान विष्णु कहते हैं उस वक्त। सो यस, वैष्णवा's blessing is a key which we all actually experience in our life. तुलसी देवी, गंगा देवी, इवन गंगा देवी का भी हम सुनते हैं कि जो उनका पानी है उसमें श्री कृष्ण के चरणों की धूली है, उसमें तुलसी दल भी होता है। तो वो पानी इवन इतना प्योर है, इतना ऑस्पिशियस है कि उसको कितने दिनों तक भी हम रख लें, सो इट रिमेन्स प्योर एंड इट डजंट गेट अफेक्टेड। जबकि हम कोई नॉर्मल पानी भी किसी बॉटल में रख दें तो खराब हो जाता है, या उसमें कुछ ना कुछ अजीब सा चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। But because Ganga Devi is again topmost Vaishnavi, Tulsi Devi is topmost Vaishnavi, so Vaishnavis, Vaishnavas, इनका आशीर्वाद obviously has profound impact. These are not only just subtle, जैसे कहते gross way, not subtle but gross way bodies, and जी पानी है या plant है. These are actually जैसे कहते हैं कि representative of Lord. They are very dear to Lord. तो जो डियर टू लॉर्ड है उनकी जब हम कोई मर्सी लेंगे तो ऑब्वियसली हमें हमें बहुत लाभ। सो या आई वाज टेलिंग लाइक बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, दे कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू थ्योरीज एंड दे ऑब्सोलीट एंड दे अगेन न्यू थ्योरी कमिंग अप इन मार्केट, एंड सो ये मामला चलते रहते हैं। इवन द फैक्ट्स एंड फिगर दे आर गिविंग एंड दे आर producing the data, that is also not authentic or credible. When we compare it with the literatures given to us by Srila Prabhupada and our acharyas, and Srila Prabhupada so many times had conversation with so many scientists, disciples, so हमें अंदाजा होता है कि he actually gave authentic, validated, credible facts and figure. साइंटिस्ट वो कहते हैं कि अच्छा जी सूर्य है या चंद्रमा है, वहाँ कोई निवास वगैरह नहीं है, वहाँ वास नहीं होता, वहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं, लेकिन यस आचार्य सेट के निवासी होते हैं, इवन इन प्लैनेट्स पर भी होते हैं, सूर्य पे भी होते हैं। सूर्य देव एक पूरा एक प्लैनेट है, वहाँ पे जो शरीर होते हैं वो अग्नि शरीर होते हैं, जैसे यहाँ हम धरती पे रहते हैं, धरा पे रहते हैं, तो यहाँ पर मिट्टी के शरीर है। इसी तरह चंद्रमा जो लोग हैं तो वहाँ भी निवासी हैं, पूरी एक अलग ही वहाँ पर यूनिवर्स है। सो लेकिन साइंटिस्ट और उनकी हम बात करें तो ये चीजें नहीं पता चलती। सो यस, इट इज अगेन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णवा, आचार्य, साधु, जो कि हमें एक्चुअल चीजें बताते हैं, जो हमें संसार की इग्नोरेंस से दूर ले जाते हैं, हर तरह की इग्नोरेंस, चाहे वो मटीरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। सो वी आर बीइंग वेरी वेरी एनरिच्ड इन आवर हेरिटेज। हमें कोई ये नहीं कि माइथोलॉजी मिली है या कि जी अच्छा कुछ उसमें फैंटेसी कैरेक्टर्स हैं या कुछ ड्रीमी बातें हैं। नो, इट्स काइंड ऑफ फुल फैमिलीज, उनका हायरार्कीज हैं। हम अपने लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें इतने सारे नाम हैं, वो कोई फैंटेसी या कोई ऐसा नहीं है कि मिथ्स या माइथोलॉजी से कोई क्रिएट कर सके। इट इज रियली काइंड ऑफ रियल एक्चुअली नॉलेज विच वी आर गेनिंग आउट ऑफ फ्रॉम out of compassion by these sadhus, these acharyas. So Vaishnavas I think it's really words would be insufficient कि उनका जो contribution है in all of our life is immense, is incredible, and we really unable to repay them at any case. Yeah, so I stop here. And thank very much for blessing me with such interaction with all of you. And I would love to hear your reflection, your experiences, and I'm here to learn from you. Actually, I was thinking, and I really, my mind is कि क्या किस तरह से लोग अप्रोच करते हैं भगवान को, साधु से कैसे उनके इंटरेक्शन में और एडवांस लेवल पे जाते हैं। I really want to love to interact with such devotee consortia. हरे कृष्णा माता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद माता जी, आप आई और इतना अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया माता जी। तो मतलब इतना अच्छा था, मतलब आपने इतने सारे पॉइंट्स कवर किए, तो बहुत कुछ था इसमें। जैसे आपने वो फैक्ट भी शेयर किया कि हार्डली 0.07% you said is 0.07%, so which is very very less, even not even 0.07, it is 0.7, it is 0.07.
वेरी वेरी सैड। एंड ये हम पे जिम्मेदारी डालता है कि हम लोग को प्रचार करना है। Yes. एटलीस्ट 0.07 से हम लोग 0.7 तक तो आ जाए और धीरे धीरे आके हम लोग 7 से 70 हो जाए हम लोग। तो इट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग को अच्छा प्रचार करना है। एंड जैसे हम लोग देख रहे हैं, आप हैं राम का ग्रुप में बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत अच्छा जो है इसको मिशन को आगे कर रहे हैं। तो वी आर हैप्पी माता जी कि आपने आई यहाँ पे। और जैसे आपने वो भी जो पॉइंट शेयर किया था महाराज भरत जड़ जड़ महाराज भरत का, तो या इट वाज वेरी करेक्ट। मैंने भी इस परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से सुना था Okay. कि एक्चुअली वो क्या एकांत में भजन कर रहे थे। वो पहले जब राजी थे तब वो अपना अच्छा से मतलब उनके पास था, गाइडेंस था, लेकिन जब वन में चले गए तो ही डिडंट हैड एनी, तो ही वाज नॉट हैविंग एनी इंटेलिजेंस अबाउट हिम टू कंट्रोल कि बाबा तुम अब ये हिरन को छोड़ दो। तो दैट्स व्हाई वो साधु संग न होने की वजह से ही हैड अ फॉल डाउन। तो दैट्स व्हाई साधु संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका आज का पूरा क्लास देखा जाए तो द क्रक्स इज साधु संग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी पावरफुल। तो बहुत जरूरी है साधु संग करना हम लोगों को। वी शुड रिस्पेक्ट, जैसे आपने बताया कि वी शुड हैव तरीका है साधु को अप्रोच करने का या अपने डिवोटी जो है वैष्णव फ्रेंड्स हैं उनको अप्रोच करने का। ऐसे नहीं मेरे फ्रेंड है ठीक है चलो कुछ भी बोल दिया, कुछ नॉट लाइक दैट, बट एज ए वैष्णव वी हैव टू रिस्पेक्ट। व्हाई वी आर रिस्पेक्टिंग देम? बिकॉज वो भगवान के भक्त हैं, भगवान की कृपा उन पे है, इसके लिए हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। सो दैट शुड ऑलवेज बी देयर। और मतलब सारे मतलब देख रहे हैं हम लोग प्रभुपाद की कृपा से हम लोग जो है सभी लोग देख रहे हैं कितना जो है वैष्णव लोग जो है वो प्रचार कर रहे हैं और कितना धीरे धीरे वो फैल रहा है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता माता जी, बट आई नो देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू माता जी। तो मैं उनको देता हूँ और कोई किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स हैं तो दे कैन टेक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी एब्सोल्युटली वंडरफुल क्लास। मतलब Thank you. जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने बताया था कि मतलब यू गिव ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एग्जांपल एंड यू हैव कवर्ड एब्सोल्युटली एवरीथिंग। बहुत बढ़िया क्लास। वी वुड रियली लव टू कीप हियरिंग फ्रॉम यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। या प्रणाम। माता जी आपका क्लास बहुत सुंदर था। प्रश्न तो नहीं है लेकिन जो आपने कहा वो बहुत अच्छा था। जैसे आपने तुलसी महारानी का बताया कि एक तुलसी होने से कितना, वैष्णव होने से कितने हमें लाभ मिलते हैं। और फिर आपने जो बताया कि वो साधु संग जो एक क्लास सुनने के बाद फिर मूवी देखने के लिए पूरे के पूरे साधु संग के लिए लेके गए, वो भी बहुत था। बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, आपको और सभी भक्तों को धन्यवाद माता जी। आपने बहुत सुंदर यहाँ पे हमें समझाया श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के माध्यम से वैष्णवों की जो महत्व है उसके बारे में और किस प्रकार हमें उनका संग करना चाहिए। तो माता जी मैं सिर्फ इसके साथ एक ये शेयर करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले ही जैसे सभी वैष्णव की कृपा से मुझे पिछली एकादशी के दिन पे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का दर्शन हुआ था मंदिर में। और कुछ दिनों के बाद उनका कीर्तन था। और अभी कुछ दिनों पहले परम पूज्य भक्ति वृंद गोविंद स्वामी महाराज जी का भी संग हुआ, ऑनलाइन संग हुआ, लेकिन तो भी उनका जो कीर्तन था उसमें संग हुआ। तो मैं माता जी ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले एक प्रवचन में ऐसा सुना था कि जैसे जो भी ये महान भक्त हैं, वैष्णव गण हैं, आचार्य गण हैं, वे सब भगवान के जो नित्य पार्षद है और भगवान के धाम में नित्य उनकी सेवा होती है। और भगवान उनको यहाँ पे बहुत ये धराधाम पे हम लोग का उद्धार करने भेजते हैं। तो जैसे वे सब मंजरी होते हैं वहाँ पे, तो वे मतलब यहाँ पे हम उनको भौतिक रूप में देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये हमारे सामने भौतिक कार्य करने आते हैं
लेकिन उनको इनमें कुछ रुचि नहीं होती, उनका नित्यम भगवान का स्मरण चलता है। तो उनका जो संग पाते ही मतलब मेरे अंदर भी ऐसा अनुभव हुआ कि जो हमारी ये भौतिक जो भी दुविधाएं हैं वो सब उसमें दूर हो जाती है जब भी हम उनका संग करते हैं, कैसे श्रवण करके या उनका सानिध्य भी मिलता है। तो वो संग से हम उनसे हमें ये लाभ प्राप्त होता है, ये शेयर करना चाह रहा था। और जो जैसा आपने बहुत सुंदर समझाया कि हमें जब भी उनका संग प्राप्त होता है तो उससे जैसे एक आपने जैसे डॉक्टर आपके जो मैत्री थी उनका भी बताया एग्जाम्पल देके, तो यहाँ पे भी कई बार ऐसे उनका जो चरण कमल चरण भी गिरता है तो हमारा जीवन, हमारा घर और हमारा जो परिवारजन है उनका भी इसमें लाभ होता है। माता जी सिर्फ ये एक इसमें तात्पर्य में भी एक ऐसा बताया है कि हमें यदि हम उनका आदर और उनको नमन प्रणाम नहीं कर पाए तो हमें अगले दिन मतलब उसके बाद उपवास करना चाहिए पूरा दिन। तो जो तो माता जी अभी जैसे हम कभी धाम में जाते हैं और धाम में ऐसा मेरा एक अनुभव हुआ था, मैं मायापुर धाम में गया था तो वहाँ पे अभी सन्यासी महाराज जी भी रहते हैं और कई सारे रहते, तो हम उनको पहचान नहीं पाते। मतलब मेरी गलती थी, मतलब मैं उनको पहचान नहीं पाया, तो तभी मैंने ऐसा प्रणाम तो किया लेकिन मैं तभी पहचान नहीं पाया सही तरह से। तो जैसे बोलते हैं कि कभी हम वैष्णव को, भक्तों को भी देखते हैं तो हमें उनको जैसे एक स्मित करके या उनको वंदन प्रणाम करना चाहिए। तो कभी-कभी हम यहाँ पे पब्लिक प्लेस में भी जाते हैं, कोई ऐसे वरिष्ठ भक्त होते हैं जो माला लेके चैंटिंग और वो सब करते हैं। तो हम भी उनको जैसे मतलब प्रणाम तो करते हैं लेकिन ऐसे कभी-कभी ऐसे अभी बस में या ट्रेन में गर्दी होती है तो ऐसे वो प्रणाम और वो नहीं कर पाते। तो माताजी क्या हमसे ये अपराध हो जाता है या ये अनजाने में भी अगर अपराध हो गया तो क्या माताजी हम उसको किस तरह ये अपने आप को मतलब उसमें सही कर सके माताजी? हरे कृष्ण बहुत माता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई हैव नो एक्चुअल डेटा ऑन दिस, बट यस ये मैंने जरूर पढ़ा है कि अगर आप उनको नमन या प्रणाम नहीं कर पाए, व्हाट यू आर सेइंग इज कि आप फिर दूसरे दिन फास्ट जरूर कर लें। पर अनइंटेंशनली अगर इग्नोर हो जाते हैं या अनइंटेंशनली आप आदर सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, देन आई थिंक लॉर्ड नोज आवर इंटेंशंस मोर, आवर मोटिव्स काउंट्स रियली एक्चुअली। और फिर वही वाली बात है कि रिमेम्बरिंग दोज साधुओं और दोज वैष्णवास, तो हम दिल ही दिल में फिर उनको प्रणाम कर लें जहां जैसे पॉसिबल हो। बाद में वो अगर कभी एनकाउंटर होता है तो वहां उनको प्रॉपर्ली मिल लें, बात कर लें और उनको प्रणाम करें। सो आई थिंक इट बैलेंसेस आउट बिकॉज दीज थिंग्स आर अनकंट्रोलेबल एंड अनइंटेंशनल। पब्लिक प्लेसेस हैं, क्राउड्स हैं, तो बहुत दफा ये हो जाता है समटाइम्स, बट देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू रीएस्टैब्लिश कनेक्शन विद डिवोटीज एंड वैष्णवास। अच्छा कोई क्राउड है या कुछ है, वहां पर नहीं हम नहीं कर पाए उस तरह से इंटरेक्ट या प्रणाम नहीं कर पाए, तो बाद में मे बी वी कैन हैव शेयरिंग ऑन टेक्सटिंग और फोन कॉल, और यू नो इट्स ऑलवेज देयर, वेज आउट आर देयर। बट यस कोई बहुत ही आप समझते हैं कि एडवांस डिवोटी है कोई बहुत ही, और उसका आपने कोई आदर सत्कार करना बिल्कुल ही भूल गए, या हम शास्त्रों में भी देखते हैं कि बृहस्पति जी आए थे, कोई इस तरह की स्टोरी है, और गुरु का उन्होंने नहीं वहां पर जो मौजूद थे तो उन्होंने नहीं उनका वो किया था, तो वो शाप मिल जाता था या कुछ इस तरह की दुर्घटना हो जाती थी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि हम फिर अगर कोई इस तरह के हाईली एलिवेटेड सोल्स हैं तो उसके लिए फिर हम जरूर जरूर फास्टिंग कर लें। बाकी रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो इट इज माय पर्सनल सजेशन कि हम फिर उसके लिए दिल ही दिल में हम भगवान को विटनेस करते हुए यू नो माफी मांग लें और फिर बाद में रीएस्टैब्लिश कनेक्ट कर लें। सो दैट इज व्हाट वी कैन डू बिकॉज अनइंटेंशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली उसका रेपिटेंस और ये सब करना पड़ेगा फिर तो। थैंक यू माता जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। माता जी एक बात शेयर करना भूल गया था, जैसे आपने साधु संघ की महिमा के बारे में बताया, तो हम लोग जब भी वहाँ पे थे दामोदर देश में, तभी हिज ग्रेस राम सखा प्रभु जी का संग मिला था और उनके साथ रहने का भी अवसर मिला था। तो वही जो थोड़ा उनसे जो मिला था वो एसोसिएशन, वो आज हम लोग को बहुत काम लग रहा है, और उन्होंने जब इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है स्पिरिचुअल लाइफ में, वो देख के भी बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है।
और आपको भी देख के इंस्पिरेशन मिल रही है। थैंक यू माता जी आपको, और राम सखा प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम, और वहाँ पे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। बहुत धन्यवाद, आपने अपने एक्सपीरियंसेस वृंदावन धाम के और शेयर किए। मुझे, क्योंकि मैं नहीं जा पाई हूँ आज तक भारत देश में, तो मुझे नहीं पता ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वहां पर मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे बहुत तपस्वी भी हैं, योगी जन भी हैं, भक्त भी बहुत, जिनको हम पहचान भी नहीं सकते हैं, दे रिसाइड ओवर देयर। तो कभी हम परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन धाम की, या कहीं वहां पर जा रहे हैं अपनी ऑफरिंग्स के लिए, इट माइट हैपन विद ऑल ऑफ अस कि जी हम उनको इग्नोर कर जाएं, या इट कुड हैपन एक्चुअली। तो वही वाली बात है कि भगवान हमारे हृदय का हाल जानते हैं, और फिर हम भगवान से संपर्क करते हैं इस मामले के अंदर, अगर सामने हम नहीं उनको सॉरी कर पाते हैं या उनको फिर से रीस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यू माता, थैंक यू। मैं जस्ट मैं जैसे जो प्रभु का जो डाउट था कि अगर क्राउड है तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग कैसे, हम लोग प्रणाम नहीं कर पा रहे, आई वांटेड टू शेयर पॉइंट ऑन दैट। लेकिन मेरे पहले ब्रजप्रिया माता जी ने हाथ उठाया था। आपका भी अगर वही सेम कनेक्टेड है तो माता जी यू कैन टेक, ब्रजप्रिया माता जी। अच्छा, ओके। हरे कृष्णा माता जी ने प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। माता जी क्लास बहुत सुंदर था, बहुत ही आप काफी पॉइंट से वो हार्ट टचिंग बोले, जिसे कुछ सीखने मिलता है, पंच बोलते कि हमें सीखने मिले इससे। और जैसे जी पान प्रभु जी का जो का उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपको, उससे तो हमारा अनुभव हुआ है। जैसे अभी दुबई में 3 दिन कीर्तन रसा था, कीर्तन मेला। तो 3 महाराज थे, हिज होलीनेस बीबी गोसाई महाराज, हिज होलीनेस सच्चिदानंद महाराज, और हिज होलीनेस नाम भूल गई, सॉरी। ओके। तो इतनी पब्लिक थी, उसमें पॉसिबल नहीं होता है कि हम दंडवत करें। मतलब जो प्रभु बोल रहे हैं उसमें कैसा है कि हमारा इंटेंशन कैसा है, हमारा इंटेंशन तो है कि हमें दंडवत प्रणाम करना है, बट वो मौका नहीं मिल रहा है कि हम दंडवत कर सके, लेकिन हम दिल में कर रहे हैं। किसी का इंटेंशन ही नहीं होता, किसी को करना ही नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है, वो अलग बात है, किसी को करना नहीं होता है, वो अलग बात है। ये कैसा सिचुएशन कैसा है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस कैसे है वो देखना चाहिए। तो वो वहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, हमें वो देखना चाहिए। तो हमारा कल अनुभव ऐसा हुआ था कि 2 दिन बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग दंडवत कर सके। बार-बार महाराज आना-जाना कर रहे थे तो हम कर सके, लेकिन कल सिचुएशन ऐसी थी कि हम नहीं भी कर सके। तो दूर से देखा तो दंडवत पब्लिक थोड़ी कम थी, तो हमने दंडवत कर लिया। लेकिन जैसे महाराज आगे आए तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो हमने नहीं किया। और कई बार ऐसे भी हमें देखना पड़ता है, हम लोग, मैं लेडीज के हिसाब से बात कर रही हूँ कि जैसे हम माता जी से हम दंडवत करेंगे तो हमें वो भी बुरा लगता है कि हमारी वजह से महाराज वहां रुक गए हैं। और ये भी होता है कि हमें पता है कि सन्यासी के आगे नहीं जाना होता है, इवन ब्रह्मचारी के आगे भी नहीं जाना होता है। बट क्या होता है, जो नॉन डिवोटी होगा ना, उसको नहीं पता होगा तो वो आगे जाएगा, सन्यासी को पैर छुएंगे, जबकि वो सब कितनी बार स्ट्रिक्टली मना करते, सब जगह पे मना करते कि प्लीज आप लोग आगे मत है, स्पेशली माता जी। इवन देखने जाए तो प्रभु जी को भी महाराज के हाथ और टच नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक जैसी बात है। तो ऐसे हमें सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, भगवान हमारा इंटेंशन कैसा है वो देखता है। हमारे दिल में इच्छा हो गई कि हम मतलब दंडवत करना है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस कैसे, सिचुएशन कैसी है, सब हमारा गुरु महाराज प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो वो ऐसा सिचुएशन कल हो गया था कि हम नहीं कर पाए, तो हमारा इंटेंशन अच्छा है वो हमें देखना चाहिए। और बाकी तो क्या बोलते हैं, डिवोटीज का संग बोलो, सब महाराज की कृपा बोलो, वो तो हमें वैसे भी मिलती रहती है। इससे मुझे एक हमारे ग्रुप में अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है। तो मुझे कल एक सडनली एक बात याद आ गई कि जब मैं महाराज, दोनों महाराज इतने स्वीट, इतने मतलब इतने हम्बल और इतना स्माइलिंग फेस, इतने मतलब थकावट के बाद भी इतना स्माइलिंग फेस और ऐसे रखना वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मुझे एक जस्ट बात याद गई कि हम कई बार बोलते हैं मैंने किया, मैंने मतलब कहीं, मैं मेरी बात करती हूँ, मैं कि अपना ऑफेंस नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा कि जैसे हमें कई बार ऐसा हो जाता है, हाँ ये मैंने किया, हाँ ये मैंने किया। बट मैं सोच रही थी कि
महाराज लोग हमारा तो कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, लेकिन वो हमारा हमें गोलोक वृंदावन लेके जाने के लिए रिस्क लेते हैं हमको दीक्षा देके। तो मैं बोलती हूँ कि वो लोग कितने लोगों को दीक्षा देते हैं, तब वो लोग मतलब मैं नहीं बोलते मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। मतलब मैं एक लाइव एग्जांपल बोले ना कि हमें उनको देख के सीखना चाहिए। हम तो तुच्छ बोलते हैं ना, हम तो एकदम गए गुजरे हैं। हम वो सोचते भी नहीं है। हम खाली बस ये अरे मैंने है ना इतनी भगवत गीता बेची, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो मतलब मैंने मैं बहुत चलता रहता है। लेकिन कल मुझे अचानक पता नहीं मैं बैठी थी, मुझे दिमाग में एक जस्ट बात आ गई कि महाराज लोग तो कितने लोगों को दीक्षा देते हैं, जबकि वो किसी को पहचानते भी नहीं होंगे। बस चलो जैसे दामोदर देव के लीडर हैं, उन्होंने बोला हाँ, दीक्षा दे दी। लेकिन ये कितनी बड़ी रिस्क की बात है। आज तो कोई अपना बुखार भी उतार के नहीं देता कि मैं इसको बुखार दूंगा तो मेरी छुट्टी कट हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। तो कहने का मतलब कि कोई इस जमाने में रिस्क नहीं लेता है। महाराज लोग इतना सब करके भी उनका वो सेंटेंस कभी नहीं दिखते हैं कि या सुनते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो ये बहुत मतलब लाइव एग्जांपल पर हम सिर्फ सुनते हैं कई बार, नहीं हमें मैंने मैं मी मैं आई वो नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हमको ये हाँ, मैंने किया, हाँ, मैंने किया। लेकिन महाराज का जब मैंने कल बैठी थी तो ऐसे ही दिमाग में भगवान ने बात डाल दी कि मैंने बोला हमको जो महाराज है ना सब उनसे सीखना चाहिए, कितना हम्बल, कितना स्वीट, कितने मतलब वो उन्होंने इतना सब करके भी उनका ये वो नहीं है कि मैंने किया है, मैंने इसको दीक्षा दी है, मैंने इतने लोगों को दीक्षा दी है। तो वो बहुत मतलब मुझे वो हार्ट टचिंग कल हो गया था ये बात, तो मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूँगी एंड नहीं, बहुत ये बात अच्छा लोगों पॉइंट है। का होगी। बहुत जी। बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये अच्छा किया आपने पॉइंट बताया, क्योंकि ये पॉइंट मैंने मिस किया है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अच्छा जी, शुद्धता तो हम प्रसाद खाएंगे उससे भी हो जाएगी, हम जप करेंगे उससे भी हमें भगवान की मर्सी ब्लेसिंग, साधु संग का महिमा है। साधु संग से सब कुछ मिलेगा, पर वो हमारे फॉल्स ईगो को भी खत्म करता है। जो आप कह रही है ना कि हम कहते हैं कि मैंने किया, हम मैं हूँ, आई ये सब चीजें साधु संग से जो है वो नष्ट हो रही होती हैं। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। जी गोपी मनोहर प्रभु, यू आर एक्चुअली विलिंग टू शेयर सम कमेंट्स। हरे कृष्णा। यस माता जी, मैं ये जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन में होते हैं हम लोग की बहुत भीड़ है, मतलब देयर इज हार्डली प्लेस टू स्टैंड, और तब कोई महाराज आते हैं तो हम प्रणाम नहीं कर पाते हैं, या तो ऑलरेडी सब लोग झुक गए हैं, मेरे पास जगह ही नहीं है प्रणाम करने के लिए। तो एक होता है कि वी डू मेंटल प्रणाम, हम लोग मेंटली प्रणाम करें। हम वहीं पे हम लोग ऐसा जगह नहीं है तो फुल दंडवत प्रणाम करें, मेंटली ये इमेजिन करें कि मैं महाराज का जो सामने पूरा मेंटल दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे माता जी ने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला कि कुछ होते हैं हम करना चाहते हैं, एक होते हैं करना ही नहीं चाहते। सो करना नहीं चाहते तो दे आर ऑफेंडर्स, लेकिन अगर इच्छा है तो भगवान जो बोलते हैं ना भावग्राही है, हमारा जो भाव है वो देखना चाहिए। एक होता है अगर प्रणाम कर भी रहा है लेकिन मन में वो उसका प्रणाम करने का मूड नहीं है, उसका इच्छा नहीं है, खाली बस सब की बार देखते हैं भक्तों को बोलते हैं दंडोत प्रणाम प्रभु, दंडोत प्रणाम प्रभु, लेकिन इट इज ऑल जस्ट वर्ड्स, इट इज नथिंग, मतलब उसमें वो तथ्य नहीं है उसमें। बट अगर हमारे पास ऐसा मौका नहीं है, एंड इवन इफ यू डू मेंटली, जब ये कर रहे थे, एक बहुत अच्छे प्रभु आए थे सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु, उन्होंने कहा था कि अलग अलग तरह की सूचियां हैं, मतलब एक्सटर्नल सूची एंड इंटरनल सूची, अंदर से शुद्धता और बाहर से शुद्धता। बाहर से शुद्धता कैसे करते हैं हम लोग नहा के करते हैं। तो ही सेड अ वेरी नाइस पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास नहाने के लिए भी अगर ऐसा मौका नहीं है तो सबसे बेस्ट स्नान कौन सा है उन्होंने बताया था। सबसे मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग दैट, वो अभी ये पॉइंट निकला तो याद है, सबसे बेस्ट स्नान है मानसिक स्नान। आप मन में स्नान करो और जस्ट इमेजिन एंड यू थिंक दैट गंगा से स्नान कर लिया, तो इवन दैट स्नान इज बेटर देन एक्चुअली टेकिंग द बाथ। तो दिस वाज अ वेरी नाइस पॉइंट। तो दिस कनेक्ट्स टू द पॉइंट, हम लोग देखते हैं कि जैसे एक जो भक्त थे उनका कहानी है कि वो मेंटली खीर बना रहे थे भगवान के लिए, तो ऐसा कुछ था नहीं सामने, ही वाज वेरी पुअर, वो बना नहीं सकते थे, लेकिन ही वाज लुकिंग वेरी नाइस, और वो जो गर्म था वो उसमें
कितना गर्म है वो चेक करने के लिए उसने हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया, जो बाहर निकाला तो इट वाज ना पूरा लाल हो गया। तो द पावर ऑफ मेंटल ना, मतलब जो मानसिक जो है, चाहे स्नान हो या Yes, पूजा या प्रणाम yes, हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन yes. आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट दिस पॉइंट टू प्रभुस क्वेश्चन कि Yeah. अगर नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए। जस्ट डू मेंटल यू डू, मानसिक उनको प्रणाम करें। और जो भी हम लोग करते हैं सिंसियरली, मतलब चाहे वो जो भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, इफ वी डू विथ माइंड, लोग कभी कभी मैकेनिकल करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कनेक्ट आवर माइंड, देन इट Yeah. बिकम्स मोर पावरफुल। आई जस्ट वांट टू से दैट। हरे कृष्णा। Wonderful, wonderful. Mental actually connection is more important, and mentally what we offer is really important. मुझे एक इसी बात पे एक छोटा सा किस्सा याद आया when I was taking Diksha online from the Maharaj. You know what happened actually when he called my name. I mean Diksha, my name. This happened last year with His Holiness Bhakti Raghav Maharaj. So can you imagine, like, you know, जैसे उन्होंने नाम मेरा कॉल किया तो I could have, like, you know, offer obeisances, and you know I was black. So sometimes, I mean, this also happen, like you have to pranam, you have to offer obeisances, and Maharaj is in front and you are totally blank, you know, it kind of thing happened with me. It's like what you are saying, mentally you are connected, and your consciousness and sort of reverence and respect, that is more important maybe. Sometimes Maharaj तो सामने है और आप उनको प्रणाम ही नहीं कर पा रहे हैं, you know, it happened with me. हरे कृष्ण माता जी। माता जी बहुत Yeah, ही yeah, please. Yeah. हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा आपने आज आज का प्रसंग था आपका। और माता जी एक्चुअली मैंने आपका वो भगवत गीता पेज मैंने फेसबुक पे ज्वाइन किया था, तो उसमें मैंने आपको आपके मतलब लेक्चर्स देखे थे तभी। हाँ, इस्कॉन पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर रखा, तो उसमें उसमें आपके बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चर सुनने को मिलते थे। मैंने आपका यूट्यूब पे भी सुना था, तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि माता जी हमारे साथ मतलब भगवान ऐसी कृपा कर देंगे, ऐसा एक लाइव मौका मिलेगा आपसे बात करने का ऐसे माता जी, क्योंकि आपके वो इस्कॉन पाकिस्तान ऑफिशियल पेज है और भगवत गीता पेज में भी आपका शेयर होता है। तो वहाँ पे आपकी मैंने मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा था, आपके जो लेक्चर वीडियोस थे। मैं सोचती थी ये माता जी कितनी अच्छी है, कितने इनके मतलब जो सिंपल और लूसिड भाषा है जो मुझे समझ में भी आती है। ऐसा ही हम सुनते हैं ना, तो मैं मतलब लगता है कि हम ये चीज़ बार-बार सुने, मतलब जो हमें समझ में भी आए सारी चीज़ें, जो लैंग्वेज है सिंपल भाषा एकदम। तो मैंने कहा माता जी कितना सुंदर तरीके से समझाती है। जब मैंने पहली बार भगवत गीता और इस्कॉन पाकिस्तान में आपको उन पेजेस में देखे थे आपके वीडियोस, बहुत आप उनमें समझा रही हैं। वो मैंने मतलब ऐसे सुने थे कि मुझे ये मिस ही नहीं करना है। और आज का भी क्लास जब मैंने कल देखा था, नोटिफिकेशन आया था कि नित्य लीला माता जी आई है, तो मुझे लगा था कि मैंने नाम आपका पढ़ा, मैंने कहा अगर ये माता जी आ रही है ना तो मुझे मिस नहीं करना है। फ़ोन-वोन सब चार्ज करके रखना है, टाइम पे पहुँचना है। बस खाली क्या हो गया कि हमारा जो थोड़ा टाइम का वो 8:55 लिखा होता तो थोड़ा यहाँ पे वो गड़बड़ हो गई। ऐसे हमारे नोटिफिकेशन ऐसा आया था 8:55, तो हम थोड़ा देर से जॉइन किए क्योंकि हमारा संडे के दिन थोड़ा लेट होता है। तो बट खैर कोई बात नहीं, पर आपके दर्शन मिल गए, मुझे वही था, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि अब माता जी को लाइव सुन भी पाएँगे और उनसे बात भी कर पाएँगे। माता जी बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं ऐसा सोचा था मैंने कि ऐसे कृष्णा मौका देंगे कि जिनको हम लाइव ऐसे सिर्फ फेसबुक पे और यूट्यूब पे ही सुनते हैं, उनको हम खुद अपनी क्लास में लाइव देख पाएँगे। मतलब बहुत अच्छा लगा माता जी। और ये भी एक चीज़ आपसे सीखने को मिली कि मुझे आज तक लगता था कि जो सूर्य देव हैं और ये जो चंद्र देव, मतलब ये इनके प्लैनेट्स होते हैं, जो आपने आज की क्लास में बताया कि इन पे भी लाइफ होती है। मुझे लगा था कि सिर्फ सूर्य देव ही रहते हैं अकेले वहाँ पे और कोई और नहीं। क्योंकि जैसे आपने बताया कि वहाँ पे जो रहेंगे, उनकी भी ऐसी बॉडीज़ उनको मिली होंगी ना कि वहाँ पे इतने तपते मतलब लोक में वो लोग रह सके। तो ये एक नई बात पता चली कि साधु संघ के बातों से हमें पता चलता है। हमें लगता है जो हमको नहीं पता होती है बातें, वो हमें पता चलती है। जो आपने अभी बताया कि उधर भी मतलब लोग रहते हैं, पूरा अपने आप में प्लैनेट है और उनको बॉडी ऐसी मिली होगी ना माता जी, जैसे कि वो लोग वहाँ पे रह सकें, अग्नि की बॉडी माता जी।
ये बहुत सुंदर आपने जो है व्याख्या की, और आपके कमेंट्स एंड आप हृदय, आपका भाव रियली अप्रिशिएबल, और इट इज एक्चुअली मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी फॉर इंटरैक्टिंग विद सच लविंग डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। एंड एक मैंने बात बहुत अच्छी जो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ अपनी लाइफ में, और वो मैंने सीखी है, वो ये है कि हमें कृष्णा के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। कृष्णा का काम है राक्षसों को मारे, बड़े बड़े तृणावर्ता, बकासुरा और इनके पीछे लगे रहे। हमें अब साधुओं की सेवा में लगना चाहिए, साधुओं के कनेक्शन में जाना चाहिए, साधुओं की जो दर्शन है, लाभ है, वहां से प्राप्त करना चाहिए, उनसे प्रेम भाव को हमें बढ़ाना चाहिए। तो साधुओं के पीछे आचार्य वैष्णवास, वो हमारा जो है वो मेन मुझे लगता है कि फोकस होना चाहिए, रादर देन वी रनिंग आफ्टर कृष्णा एंड बलराम जी। साधु संगा एंड वैष्णवास इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि कृष्ण जो है ना, उनको थोड़ा बड़े काम और ये सारे उनमें मगन रहने दे, उनको बिजी रहने दे उसमें। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। बहुत ही लाइव आपसे लाइव इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे लाइव सुनते हैं ना जब भी, तो जो रियल मैसेज हमको मिलता है, क्योंकि हम वीडियो में तो जो मतलब सुनते ही है, रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्डेड, लेकिन लाइव में कुछ ज्यादा ही भगवान ज्ञान दे देता है कि जो हमारे लिए जरूरी है वो तू अब सुन, मतलब ऐसा हो जाता है। Well, I am really not kind of a very expert person. मैं अभी कुछ ही साल हुए हैं मुझे इस्कॉन में, but yes, as you all are said कि राम सखा प्रभु जो है वो उनसे बहुत सीखने को मिलता है। He is very determined और बहुत साधना परायण है, गुरु वचन परायण है वो, तो उनको देखते देखते वही एसोसिएशन का असर है असल में, और कुछ नहीं है। Yes, माता जी, थैंक यू माता जी। ओके, माता जी आपके पास टाइम है? Yeah. बिजी टाइम है, ओके। तो जस्ट मैं ये पूछना चाह रहा था माता जी कि मतलब आपका बहुत सा क्वालिटीज है विच मतलब मैंने शेयर नहीं किया। तो एक तो है कि आप वर्णाश्रम धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं। Yeah. तो लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस। महाराज, मैं एक्चुअली इंट्रोडक्शन में मैं कहना भूल गया, माता जी जो है राघव स्वामी महाराज है की डिसाइपल है। राघव महाराज जो है वो काफी अच्छा वर्णाश्रम को जो है वो इलेबरेट कर रहे हैं, काफी उसका प्रचार कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के बारे में। तो माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे उसमें, व्हाट इज द बेसिस और क्यों करना है जी वर्णाश्रम? जी बिल्कुल। इवन हम भीष्म पितामह जी से हम शुरू करते हैं, जब वो युधिष्ठिर महाराज को जो है वो काफी स्ट्रेस हो रहा होता है महाभारत की जंग में, एंड आई एम नॉट अ गुड किंग, यानी मैं इतना अच्छा राजा नहीं हूँ कि मेरी वजह से इतने सारे लोग आज खत्म हुए हैं। तो ही वाज फीलिंग सो मच टॉर्मेंटेड एंड वेरी डिप्रेस्ड। बहुत उनको लग रहा था कि मैं कैसा राजा हूँ कि मेरी वजह से इतनी जंग हो गई, और एक सिर्फ राज्य को हासिल करने के लिए मैंने ये किया। तो उस वक्त कृष्णा उनको समझाते नहीं है, वो उनको लेकर जाते हैं भीष्म पितामह के पास एज अ काउंसलर। तो भीष्म पितामह जी उस वक्त जो है वो मानव धर्म की बात करते हैं, भीष्म पितामह जी उस वक्त स्त्री धर्म की बात करते हैं, भीष्म पितामह जी उस वक्त वर्ण आश्रम धर्म की बात करते हैं, भीष्म पितामह जी उस वक्त जो है वो भगवत धर्म की बात करते हैं। तो भगवत धर्म में क्या होता है कि ये जो हम करते हैं कीर्तन, साधु संग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हमारी शुद्धि वगैरह हो रही होती है। पर जिंदगी का एक और पहलू है जिसे हम कहते हैं कि हम कोई ऑक्यूपेशन में है, हम कोई कार्य कर रहे हैं, या इवन हमारा कोई रोल है जिंदगी में, किसी स्त्री का रोल है, किसी यंग एज चाइल्ड का रोल है, कोई डॉक्टर है तो उसका रोल है, राइट, कोई का क्षत्रिय है तो उसका अपना प्रोटेक्शन वाला रोल है, या ब्राह्मण है तो उसका विद्या देने वाला रोल है, वैश्य है तो बिजनेस और काऊ की सेवा वाला रोल है। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली कैसे एड्रेस हो, वो वाली चीजें तो हमने कह दिया कि जी अपनी शुद्धि के लिए, भगवान की मर्सी के लिए हम साधना, जप, तप ये सब कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कार्यों को कैसे शुद्ध करें,
हमारे जो वर्ण है वो हमारे जन्म से नहीं डिसाइड होते हैं। वर्ण आश्रम, जो दैवीय वर्ण आश्रम धर्म है, वो हमें ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण कुल में आ गए और आपने वहां जन्म ले लिया तो ब्राह्मण ही की तरह रिप्रेजेंट करेंगे या आपके अंदर वो सारे गुण होंगे। इट इज रियली नॉट अ पॉसिबल। लाइक इट्स ऑल योर कर्मा एक्चुअली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस गुण कर्म के तहत आप अपना कार्य करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय धर्म के अंदर अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी एनर्जी नहीं सर्व करता तो वो क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन अब अगर क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य भी वो पूरा पालन कर रहा है, देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए वो खड़ा है, निडर है, बहादुर है, प्रोटेक्ट करता है, आर्मीज को लीड करता है, तो इसका मतलब कि वो अपने कर्म की वजह से जो है वो एक पक्का जो है वो क्षत्रिय है। तो हमारा जो वर्ण आश्रम धर्म है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आप जो भी कार्य करें गुण और कर्म के हिसाब से आप करेंगे, भगवान को बीच में रखते हुए आपने करना है। ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं तो आप अपने ऊपर लेबल लगा के रखें कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं सबसे सुपीरियर हूं या काइंड ऑफ थिंग। व्हेन यू आर डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा तो आपका गुण कर्म सब कुछ भगवान से लिंक होके जब आप कोई भी, चाहे घर में आप काम कर रहे हैं, महिलाएं हैं सेवा कर रही हैं, स्त्री धर्म, जैसे मैंने कहा कि बीच में पितामह जी ने उस वक्त स्त्री धर्म का बताया, वर्णाश्रम धर्म में भी स्त्री धर्म का आता है कि जी महिलाओं का जो काम है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ सिस्टर, तो उसके कुछ रोल्स हैं, दे आर सपोर्टिव एंड असिस्टेंस टू हस्बैंड्स एंड अदर काउंटर पार्ट्स। इसी तरह से जो मेल है तो उनका एक बेसिक रोल है परवरिश करना और सारी जो है वो जो जनरेशन है उसको भगवान की भक्ति में जोड़ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ण आश्रम धर्म का एक तो कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कि महाभारत में इसके ऊपर बहुत हमें ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। इसी तरह हम पूरी राम सीता जी की पूरी जीवन की बायोग्राफी देखते हैं तो उसमें भी हमें पता चलता है कि रियाया जो थी, जो पूरी सुख शांति का जो माहौल था, मंगलमय था, सब कुछ क्यों, वहां पर हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा था। ब्राह्मण है तो वो प्रॉपर ब्राह्मण है, खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है कि उसका जन्म ब्राह्मण है, वो कर्म से भी ब्राह्मण है। और दूसरे अगर वहां पर कोई और वैश्य है या वो है क्षत्रिय है तो वो अपना कर्म निभा रहे थे। आज हर कोई इंसान अगर अपना अपना कर्म करेगा तो ऑब्वियसली सुख, चैन, सुकून, पीस, हार्मनी ये सब मिलेगा ही। इसी तरह से शिला प्रभुपाद ने एक बात कही थी और शिला प्रभुपाद ने बार बार एम्फेसिस किया इस बात पर कि 50% जो मिशन है वो तो अकॉम्प्लिश हो चुका है। यानी 50% मिशन में क्या क्या था? संकीर्तना थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन था, इनिशिएशन थी, कांग्रीगेशन थी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे। शिला प्रभुपाद ने 4 मूवमेंट्स का जो है वो जिक्र किया था, उसमें से जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें थी। लेकिन शिला प्रभुपाद ने ये भी कहा कि फार्म कम्युनिटीज हम डेवलप करें, गौ सेवा जो है वो धरती सेवा है, तुलसी सेवा है, ये सारी गौर ऋषि, ये सारी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत है इम्पोर्टेंट। इवन आज की हम जब हालात देखते हैं, स्थिति देखते हैं तो उसमें भी हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन इज रियली वेरी स्कैरी, यू नो। बीमारियां इतनी ज्यादा फैली हुई हैं, लोगों का शांति, मानसिक संतुलन वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। एवरी लाइक यू नो पर्सन हैज फैमिली डिसएग्रीगेशन, फैमिली सुकून, लव, पीस, ये सारी चीजें सब मिसिंग हो गई है। द रीजन बीइंग कि जो भगवान ने हमें एक मॉडल दिया है कि हर कोई अपना कर्तव्य, अपने टाइम फ्रेम, अपने फ्रेमवर्क के अंदर रह के काम करेगा तो सबके मसाइल भी हल होंगे, सब भगवान से जुड़ेंगे भी। तो वो सारी चीजें लिटरली मिसिंग है, वी सी दैट। तो शिला प्रभुपाद हैज एम्फसाइज 1970 से उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि देखिए ऐसा वक्त आएगा कि आपको लॉकडाउन से लग जाएंगे या ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसमें आपको इवन खाने को नहीं मिल रहा होगा, मुश्किलात होगी। तो ये एम्फसाइज कीजिए, अपना फूड आप खुद ग्रो करें, आप जो है वो अपनी गाय वगैरह के थ्रू जो एग्रीकल्चरल एटमॉस्फेयर है उसको प्रमोट करें, ताकि ठीक है अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये केमिकल बेस्ड जितने भी ऑपरेशन है वर्ल्ड वाइड वो कहीं पर भी अगर स्टॉप हो भी जाते हैं सो एटलीस्ट यू वुड हैव लाइक ये वाले सस्टेनेबल कुछ ऑप्शंस आपके पास होंगे उस वक्त भी। श्री कृष्णा की हम अपनी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं तो ही वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ काउज एंड उनका नाम भी गोविंदा इसीलिए पड़ा
गाय के वो रक्षा करते हैं गौओं की। वो वाली चीज को हमें अपनी लाइफ से मिस नहीं करना है, किसी तरह भी मिस नहीं करना। वर्ण आश्रम धर्म को अगर मैं समराइज करूं, सो इट्स अ धर्म बेसिकली जो कि मटेरियल कंडीशंस या मटेरियल प्लेटफॉर्म में आपको कृष्ण को सेंटर में रखते हुए ये काबिल बना देता है कि आप सुख चैन सस्टेनेबल सुकून के साथ जिंदगी गुजार सके। देखिए, हम मंदिर में होते हैं, हम माला जप करेंगे, प्रसाद खाएंगे, हम सुकून में होते हैं ना, अच्छा लगता है, सब कीर्तन है, भक्तों का संग है। देन व्हेन यू वर्क ऑन कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड, आप जहां काम करने जाते हैं वहां पे नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड, नॉट एवरीवन इज योर बिलव्ड। देयर इज काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ कि जहां पर आपको एज अ अर्जुन जो है फेस करना है चैलेंजेस को। एज अ अर्जुन यू हैव टू बी विद पार्थ सारथी श्री कृष्णा। तो अपने कर्तव्य को निभाते हुए श्री कृष्ण को अपनी जिंदगी में रखते हुए कैसे सक्सेस अचीव करनी है, चाहे आप जिस भी हालात में, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, चाहे आप बाहर काम कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं किसी भी लेवल पे, चाहे आप आर्मी सरहद पे खड़ी हुई है, सरहद पे आर्मी बन के खड़े हुए हैं, या आप गवों के साथ जो है गैया चरा रहे हैं, तो कुछ भी काम कर रहे हैं, that should be in accordance with Varnashrama Dharma, keeping the Sri Krishna in the center. So this is what Varnashrama Dharma is. थैंक यू माता। Thank you, Mata. Thank you, Mata. Thank you, Mata. ठीक है माता जी, टाइम हो रहा है तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही बीच बीच में आते रहिए और अपना संग देते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपके आज का सेशन, तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप कमिंग। तो हम लोग अभी जो है हम लोग अभी नर्सिंग आरती करेंगे एंड विल हैव प्रेयर्स। तो you want, you can stay back or you can leave as per your convenience, possible. Yeah, I would like to actually extend again the special thanks and heartfelt gratitude. And I must say that it's a blessed association for me, which I never thought would happen in my life. And a dream come true, actually. Today I feel just like that. And I would like, unlimitedly thank Srila Prabhupada that, whole my day, I think it's kind of ecstasy that I have got this Sangha. So thanks very, very much. Thanks very much again. Thank you. पंचा चलते